stress, toxicity, sadness, trauma, anxiety, fear, suicide, self doubt, drugs, alcohol. All these terms, they are not new to you if you are studying in a medical college. Yes, medical college can have challenging and stressful experiences, and one of the most common issue that arises is depression among medical students. Before we dive into the topic, I would like to acknowledge that I, Kayan, a third year MBBS student at NMMC Ahmedabad, have personally experienced the ups and downs of this journey. By sharing our experiences and knowledge, we can work together to create awareness and support one another. Before we move ahead, don't forget to subscribe to our YouTube channel Mask Medicos, because making these videos takes a lot of our time and effort, and subscribing it would make up for it. Also, don't forget to follow us on our Instagram account, where we will be sharing regular updates and many more things. So, what is depression? Depression is a common and serious medical illness that negatively affects how you feel, the way you think, and how you act. Depression causes feeling of sadness and loss of interest in the activities that you once enjoyed. Fortunately, it is treatable. Just so you know the seriousness of this topic, here are some of the incidents that I would like to share with you. 19-year-old MBBS student commits suicide by jumping off 6th floor. 21-year-old MBBS student commits suicide by jumping into the river. The dean of the college said that the victim was a good student and may have been depressed. Vadodara. An MBBS student took his own life inside his hostel room in the city on Thursday when the country was celebrating National Doctors' Day. He hung himself with a wire in the afternoon when he was alone in the room. In May this year, a 22-year-old student too had committed suicide by hanging himself in the hostel room. An MBBS student died by suicide in Lucknow. As per the police reports, she was suffering from depression for a very long time. The student ended her life by jumping from the 9th floor of her college. A final year MBBS student was found dead in her hostel room on Thursday morning. Delhi police officials said that they recovered a note in her diary that suggests she was under depression. A meta-analysis in the American journal JAMA suggested depressive symptoms in 21 to 43% of all medical students. According to the Indian Journal of Psychiatry, 30% of Indian doctors and physicians go through depression, while 17% have thought of ending their life. According to a research, the prevalence of depression was found among 5,944 medical students of India. According to another research, the prevalence of depression among the medical students in India was 40%. According to a study, 358 suicide deaths among the medical students, residents, and physicians, they were reported between 2010 and 2019. So, what are the causes behind this? Number 1 is ragging and the toxic relationship between senior and junior. Yes, we have talked about this thing in our previous videos also. But the toxicity among the senior and junior is increasing day by day. Because सीनियर्स को वो रिस्पेक्ट, वो वैलिडेशन चाहिए अपने जूनियर से जो उनको खुद अपने सीनियर से कभी नहीं मिला. एंड दिस साइकिल कीप्स ऑन रिपीटिंग. आज जो सीनियर्स है वो अपने जूनियर्स की रैगिंग कर रहे हैं, एंड जब वो जूनियर सीनियर बनेंगे तब वो चीज़ें अपने जूनियर्स के साथ करेंगे, क्योंकि उन्होंने ये सब चीज़ें अपने सीनियर से ही सीखी है. एंड ऑफन ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आगे चली जाती है. एंड इफ़ यू थिंक कि ये सब चीज़ें कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को क्यों कन्वे नहीं करता, इट इज़ बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर हॉस्टलाइट्स. वो अपने पेरेंट्स और अपने घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है. एंड
एट द बैक ऑफ माइंड उनको ये भी रहता है कि उनके पेरेंट्स ने काफ़ी मेहनत करके उनको मेडिकल कॉलेज भेजा है, जिसकी फ़ीस आज के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा होती है। सो वो ये सब चीज़ें बोल के अपने पेरेंट्स को और ज़्यादा टेंशन नहीं देना चाहते, इसलिए वो उनको नहीं बताते हैं। एंड काफ़ी बार ये चीज़ें वो अपने फ्रेंड्स को भी नहीं बताते हैं, क्योंकि उनके फ्रेंड्स ये सब चीज़ों का मजाक उड़ाएंगे और उनको यही बोलेंगे कि ये सब होता रहता है, जाने दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई लड़का ये सब चीज़ें उसके फ्रेंड को जाके बता रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसका फ्रेंड यही बोलेगा कि क्या लड़कियों की तरह रो रहा है, जाने दे, ये सब तो होता रहता है। सो इन दिस वे द स्टूडेंट गेट्स लोनली एंड इवेंचुअली ही गोज़ इनटू डिप्रेशन। Number 2 is studies and increasing workload. Yes, MBBS requires a lot of things to be studied. No matter what के लोग क्या कहते हैं कि खाली एग्ज़ाम के पहले पढ़ो या पढ़ना बहुत कम होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। If you are a serious student, then yes, आपको काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। And the competition is increasing day by day. For example, पहले लोग नीट पीजी की प्रिपरेशन अपने इंटर्नशिप से स्टार्ट करते थे, फिर लोग 4th ईयर से स्टार्ट करने लगे, फिर 3rd ईयर से स्टार्ट करने लगे, एंड अभी के स्टेज पे लोग वो प्रिपरेशन 1st एंड 2nd ईयर से ही स्टार्ट कर देते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये सब चीज़ें गलत है। अगर आप 1st ईयर एंड 2nd ईयर से प्रिपेयर कर रहे हो देन इट्स कम्प्लीटली ओके, बिकॉज कॉम्पिटिशन ही इतना बढ़ गया है कि सबको लगता है कि अगर हमने जल्दी स्टार्ट नहीं करा तो हम कहीं पीछे ना रह जाए। ऑल्सो इंटर्नशिप में वर्कलोड इज़ इंक्रीजिंग सो मच कि इट इज़ कम्प्लीटली अनबेरेबल। अगर आप सर्जिकल या ऑप्स गाइनी ब्रांच में हो तो आपको ये सब चीज़ें रिलेट होगी कि आपके पास ना खाने का टाइम है ना सोने का टाइम है, आपका जो पूरा स्केड्यूल है वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब चल रहा है। आप इनफैक्ट लोगों को तो ठीक कर रहे हो बट खुद की फ़िज़िकल एंड मेंटल हेल्थ की बैंड बजी पड़ी है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम नो वन वुड कम अप एंड स्पीक अबाउट दिस थिंग्स, बिकॉज सबको यही लगता है कि ये सब चीज़ें मेडिकल कॉलेज में होती है एंड आपको ये सब चीज़ों से यूज टू होना पड़ेगा, बिकॉज वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दिस। इसीलिए कोई भी इसके बारे में आके अप फ्रंट होकर नहीं बोलेगा। नंबर 3 इज़ ओवर एक्सपेक्टेशंस। आप अपने स्कूल या अपने ट्यूशन के टॉपर रहे होंगे, एंड सिर्फ आप नहीं, आपके जितने भी बैचमेट्स हैं मोस्ट ऑफ देम वो सब अपने स्कूल या अपने ट्यूशन्स के टॉपर रहे होंगे, बट आज उन्हीं सब टॉपर्स में से काफ़ी लोग फेल हो रहे हैं। आपके पेरेंट्स और आपके रिलेटिव्स का प्रेशर तो हमेशा रहता ही है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी डॉक्टर बनेगा, बट दिस इज़ नॉट अ केक वॉक। ऑब्वियसली यू हैव टू गो थ्रू सम ऑफ द टफेस्ट फेजेस ऑफ योर लाइफ इन दिस मेडिकल जर्नी। आप एक दिन अपने दोस्तों के साथ बैठकर हंस रहे होंगे एंड दूसरे ही दिन आप अपने रूम में अकेले बैठ के रो रहे होंगे जब आपके पास कोई भी नहीं होगा। येस, दिस इज़ द रियलिटी। मेंटल ब्रेकडाउन्स, बर्नआउट, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें काफ़ी कॉमन है व्हेन यू आर नॉट एबल टू अचीव व्हाट यू थॉट। नंबर 4 इज़ फ्रेंड्स एंड रिलेशनशिप। येस, फ्रेंड्स डू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर मेडिकल जर्नी। इनिशियली जब आप फर्स्ट ईयर में होंगे तब आपका 10-15 फ्रेंड्स का बहुत मस्त बड़ा ग्रुप होगा, लेकिन जब तक आप फाइनल्स में आओगे तब तक अगर आपके पास 3 से 4 भी अच्छे दोस्त बच जाए ना, देन कंसिडर योर सेल्फ वेरी वेरी लक्की, बिकॉज मेडिकल कॉलेज में आप ऐसे ऐसे सांप देखोगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, जो रोज़ आपके साथ उठता है बैठता है, जो रोज़ आपके साथ सेम ही टेबल पे खाना खाता है, इतने सालों के बाद भी वही आपको बैक स्टेप करके चला जाएगा एंड आपको लगेगा ये क्या हुआ। बट ट्रस्ट मी, इट इज़ वेरी वेरी कॉमन। आप ये चीज़ें खुद के साथ भी होते हुए देखोगे और दूसरों के ग्रुप में भी होते हुए देखोगे। ऑल्सो इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप देन आपको अपने पार्टनर को टाइम देना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हो तो ये चीज़ें ईजीली हो जाएगी, लेकिन 3rd ईयर से आपके पास टाइम की कमी होगी। एंड अगर आपका पार्टनर MBBS में तो मे बी ही और शी विल अंडरस्टैंड दिस थिंग, बट अगर आपका नॉन मेडिकल फील्ड में पार्टनर है दैन ये चीज़ें उसको समझाना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि आपके पास टाइम क्यों नहीं है। एंड हमने काफ़ी बार देखा है कि जब 2 लोग अपने में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि वो बाकी सब फ्रेंड्स से डिस्टेंट हो जाते हैं।
ऑल्सो वेरी ओपनली स्पीकिंग, ऐसा नहीं है कि MBBS में हर लड़का या हर लड़की का पार्टनर होगा या हर कोई रिलेशनशिप में होगा. इट इज़ नॉट नेसेसरी. एंड अगर आप हो एंड अगर आपका अच्छा चल रहा है तो देयर विल बी पीपल जो आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस होंगे, आपके बारे में रूमर्स फैलेंगे, बैक बीचिंग होगी, सब होगा. एंड ये टॉक्सिक कल्चर MBBS में काफ़ी कॉमन है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है. नंबर 5 इज़ मूवीज़ एंड वेब सीरीज़. आज के टाइम पे मेडिकल लाइफ रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ एंड वेब सीरीज़ आने लगी है. एंड द मेन पर्पज़ इन सब चीज़ों का इज़ टू मोटिवेट यू. ये सब चीज़ें सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए बनाई जाती है, जिससे कि व्यूअर्स इन सब चीज़ों को देखें और उनको मज़ा आए ये सब चीज़ें देखने में. बट द थिंग दैट वी फॉरगेट इज़ ये सब जो दिखाया जाता है वो रियल नहीं होता है. ये सब चीज़ें देख के आपके दिमाग में फेक लाइफ सिनेरियोज क्रिएट होते हैं कि मेडिकल लाइफ में ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा. बट ऐसा कुछ नहीं होता है. MBBS लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज परफेक्ट एंड इट इज़ नॉट ऑलवेज फन. आपको हार्डशिप्स भी फेस करने पड़ेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ या वेब सीरीज़ में आपको नहीं दिखाया जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पढ़ाई का ही सीन दे दूँ तो मूवीज़ या वेब सीरीज़ में क्या होगा, पीछे एक मोटिवेशनल बैकग्राउंड म्यूज़िक चला दिया जाएगा एंड दिखा दिया जाएगा कि वो बच्चा पढ़ रहा है एंड ही विल टॉप. बट ऐसा नहीं होता है रियल लाइफ में. मैं आपको PSM में पार्क की टेक्स्ट बुक पकड़ा दूंगा एंड आपको बोलूँगा कि इसमें से 10 पेज पढ़ो. अगर आप 1 घंटे में 10 पेज भी पढ़ लोगे ना बिना बोर हुए, देन आप मेरे को कमेंट्स में बता देना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी होगी जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा बट आपको वो चीज़ें करनी पड़ेगी. सो एंड में यही है कि रियल लाइफ और रील लाइफ में डिफरेंस होता है जो आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा. आप वो सब चीज़ें देख के अगर माइंड में ये सिनेरियोज क्रिएट कर दोगे कि वो ही चीज़ें होनी चाहिए एंड वो ही होगा, देन वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी, क्योंकि ऐसे सब चीज़ें मोस्टली रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होती है. सो व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन? पर्सिस्टेंट सैडनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, आपके स्लीप पैटर्न में चेंजेस आना, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन द एक्टिविटीज़ जो आपको कभी पसंद थी, स्टेइंग क्वाइट एंड लोनली, एकेडमिक परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज आना, कॉन्सेंट्रेशन करने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होना, या फिर सेल्फ हार्म एंड सुसाइडल थॉट्स आना. सो हाउ टू टैकल डिप्रेशन और व्हाट आर द कोपिंग स्ट्रेटजीज? नंबर 1 इज़ रीच आउट फॉर सपोर्ट. अपने किसी भी ट्रस्टेड फ्रेंड से बात करो, अपने फैमिली मेम्बर से बात करो, आपके कोई भी मेंटर, टीचर, प्रोफेसर, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो उससे बात करो. शेयर व्हाट यू आर फीलिंग, अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी फीलिंग्स को शेयर करो एंड आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा वो सब करके. नंबर 2 इज़ सीक प्रोफेशनल हेल्प. कोई भी काउंसलर के पास जाओ, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाओ एंड दे विल गाइड यू, सपोर्ट यू एंड इवन गिव थेरापेटिक इंटरवेंशन इफ़ नीडेड अकॉर्डिंग टू योर नीड. सो जो भी होगा वो आपको बताएंगे एंड आपकी हेल्प करेंगे. नंबर 3 इज़ प्रैक्टिस सेल्फ केयर. प्रायोरिटाइज वो एक्टिविटीज़ जो आपको खुश करे, जो आपको रिलैक्सेशन दे. एंगेज इन योर हॉबीज़, जो भी आपको करना पसंद है वो करें. एक्सरसाइज रेगुलरली, ईट वेल, स्लीप वेल एंड जस्ट आपके फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग का ध्यान रखें. नंबर 4 इज़ योर फ्रेंड्स एंड योर बैचमेट्स. Yes, they will play a very important role in this because most of the time जो भी डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है वो डायरेक्टली बाहर नहीं आएगा दैट बिकॉज डिप्रेशन है, एंड काफ़ी बार ये भी होगा दैट उसको मालूम भी नहीं होगा दैट ही इज़ सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन. सो इफ़ यू नो कि आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई बैचमेट इज़ गोइंग थ्रू समथिंग, देन गो एंड टॉक टू देम. शायद वो आपको पहली बार पूछने पे कुछ नहीं बताएंगे, दूसरी बार पूछने में भी शायद कुछ ना बताएं, बट बी पेशेंट एंड उनसे बात कीजिए. मे बी आप उनको कम्प्लीटली ट्रीट तो नहीं कर पाएंगे, बट आप जो भी बात करेंगे दैट विल डेफिनेटली हेल्प देम अ लॉट. एंड द लास्ट थिंग इज़ कि इस चीज़ में कंपटीशन के बारे में मत सोचना. ऐसा मत सोचना कि चलो वो डिप्रेस्ड है तो अच्छा है कि एक कंपटीशन हटा, मैं अपने स्टडीज़ पे फोकस करता हूँ. डॉक्टर सब बन जाओगे, बट डॉक्टर बनने से भी पहले अच्छा इंसान बनना सीखो. अगर वो बन गए तो बात की चीज़ें तो होने ही वाली है. दोस्त जरूर बनाना, और अच्छे दोस्त बनाना. जिस बंदे के दोस्त हो उसके अच्छे दोस्त बनना, क्योंकि जितने ज्यादा काम अभी दोस्ती आने वाली है ना, अगले 5-6 सालों में इतना कुछ नहीं आने वाला. एंड रिमेंबर दैट सीकिंग हेल्प इज़ अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ.
एंड नॉट दैट ऑफ वीकनेस। आप डिप्रेशन को टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, उसकी कोई वैक्सीन नहीं है, उसके खिलाफ कोई इम्यूनिटी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन है एंड दिस प्रॉब्लम इज़ रियल। So if you are suffering from depression, then seek help, and if you know someone that is suffering from depression, then go and help them out. So this is it for today's video. I hope you liked it and it added some value to your life. And अगर आपके और कोई thoughts या views है डिप्रेशन को लेकर, then comments में please feel free to write. Also, don't forget to like, comment and share this video with your batchmates and friends as much as possible. We will be seeing you in the next video very soon. Till then, take care.